یہ ہجرت کے عمل سے گزرنا بہت اور یہاں تکلیف دہ پہنچنا عمل ہے، سب بہت کچھ، اور تکلیف زندگی دہ کے عمل ہے۔ سارے دکھوں کے ساتھ زندگی کے سارے مسائل کے ساتھ زندگی کو فیس کرنا اور پھر کامیابیوں کی منزل تک پہنچنا، پریشانی، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، بالکل۔ اور یہ دیکھیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ پورے فائن آرٹس کی اگر بات، جو لوگ باہر سے آئے آپ دیکھ لیجئے کہ سب نے، چاہے وہ فلم میں ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں، چاہے جہاں بھی ہیں، وہ ان کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے، بالکل، ایک پوری کتھا کہانی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ روف آپ مجھے 2 شعر اچھے سے سنائیے، اور پھر میں احمد سے کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا کچھ سنائیں۔ جی، اس پہ ذرا میں اگر ایک بات آپ سے، پلیز سر، بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ عزت یا شہرت جو ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے انسان کوشش تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت حد تک خدا داد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں مطلب عزت میں دوبارہ ایک لفظ شہرت جو ہے نا، یہ تو کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگنی عزت ہی چاہیے، مطلب کہ جو مناسب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ شہرت بھی تو عزت ہی کا ایک وہ اس میں آ جاتا ہے۔ چلیں اس پہ یہ روف، یہ بہت تفصیل طلب سارا معاملہ ہے، کچھ سنائیے گا۔ جی، ہر ایک حد سے گزرتا جا رہا ہے، ہر ایک حد سے گزرتا جا رہا ہے، کوئی دل میں اترتا جا رہا ہے۔ اچھا، واجب۔ ہر ایک حد سے گزرتا جا رہا ہے، کوئی دل میں اترتا جا رہا ہے، کسی کی چاہتیں اس کو ملی ہیں، جو پل پل یوں سنورتا جا رہا ہے۔ اچھا، کسی کی چاہتیں اس کو ملی ہیں، جو پل پل یوں سنورتا جا رہا ہے، میں رو رو کر دلاؤں یاد اس کو، میں رو رو کر دلاؤں یاد اس کو، وہ ہنس ہنس کر مکرتا جا رہا ہے۔ اچھا، میں رو رو کر دلاؤں یاد اس کو، وہ ہنس ہنس کر مکرتا جا رہا ہے۔ عمر آخر یہ کس کی دھڑکنے ہیں، تو جن پر پاؤں دھرتا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ اور میں ایک دفعہ پھر، اگر آپ نے ہمیں سننے والوں نے، جو دوست جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس محفل شعر و ادب میں ہمارے ساتھ سعید عاصم صاحب، رؤوف عمر صاحب اور احمد زمان آج موجود ہیں، اور احمد زمان سے بھی ہم گانا سنیں گے۔ لیکن آپ تمام دوست جو پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام میں شمولیت کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو 111-111-100 یہ ہمارا نمبر ہے، اور 042 کا کوڈ ملائیں گے تو آپ ہم لوگ لائن حاضر ہوں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو جد و جہد ضرور کرنا پڑے گی۔ اور وہ دوست کہ جو پروگرام میں میسیجز بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کے پیغامات میرے سامنے ہیں، تو اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ اپنے سیل فون پہ رائٹ میسیجز کے آپشن میں جائیں گے، اس کے بعد LHR لکھیں گے، اس کے بعد اسپیس دیں گے، اس کے بعد اپنا میسج لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ لاہور کے جس ایریا میں آپ لوگ، جس علاقے میں موجود ہیں، ضرور اس کو لکھ دیجئے گا کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے، کوئی بات، کوئی دوستوں سے کچھ پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ضرور ان سے پوچھ سکتے ہیں، آج کے مہمانوں سے۔ اور 3636 پہ آپ نے اپنا میسج ہمیں لکھنے کے بعد بھیجنا ہے۔ آپ کے پیغامات کے ہم شدت سے منتظر ہیں، اور آپ کے پیغامات بے شمار میرے سامنے اس وقت موجود بھی ہیں، اور آپ کی کالز کچھ دیر کے بعد ہم لیں گے۔ اور ابھی میں احمد سے، احمد زمان، کیا سنائیں گے آپ؟ میں محمد رفیع صاحب کا ایک گیت سناتا ہوں آپ کو۔ تم بن جاؤں کہاں۔ جی۔ تم بن جاؤں کہاں، تم بن جاؤں کہاں، کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ پھر چاہ سنم تم کو چاہ کے، تم بن جاؤں کہاں، تم بن جاؤں کہاں، کہ دنیا میں آ کے کچھ نہ پھر چاہ سنم تم کو چاہ کے، تم بن دیکھو مجھے سر سے قدم تک،
सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो कि तुम्हारा, बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा, किस किस गली तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ. गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए. जीना सिर्फ मेरे लिए. और आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ दो इंतहाई खूबसूरत अदबी शख्सियात मौजूद हैं. इनसे हम कलाम भी सुने और बातें भी करें. इसके साथ आपके जो पैगामात हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करने का सिलसिला आगाज करेंगे और अहमद से भी बहुत कुछ सुनेंगे और हमारे जो मेहमान हैं इनके साथ भी बहुत सी बातें भी करेंगे, उनसे बहुत कुछ हम शेयर भी करेंगे. ये नूरजहां का मैसेज है जी. इन्होंने कहा जी कि नूरजहां की आवाज में मुझे कोई अच्छी सी गजल या नज्म सुना दीजिए. चलिए जी मैं कोशिश करता हूं. और हमारे साथ मौजूद हैं जी आसिया अरशद बहन इकबाल टाउन से. इन्होंने कहा कि प्रोग्राम का आगाज अच्छा और आपके मेहमान अच्छे और इनके साथ गुफ्तगू का लुत्फ आ रहा है. बहुत शुक्रिया आपका. और ये हैं जी हमारे साथ आसिफ इसहाक गाजी साहब, गाजी रोड कैंट लाहौर से. कहते हैं कि आपको बहुत सलाम और प्यार कहता हूं जी. सईद वासिक भाई आपसे प्रोग्राम में कॉल करने की पूरी कोशिश करूंगा. बहुत शुक्रिया आपका आसिफ इसहाक गाजी साहब. और लियाकत खान साहब मौजूद हैं जी. इन्होंने हमें कहां से मैसेज भेजा, इलाका नहीं लिखा. सलाम वासिक भाई, क्या हाल है? वासिक भाई इतनी अच्छी शायरी के फौरन बाद ये भाई लफ्ज की मुझे समझ नहीं आई कि खैरियत तो है. अच्छा ये लफ्ज की मुझे समझ नहीं आई साहब, वरना अगर तनकीदी लफ्ज होता भी तो कोई ऐसी परवाह नहीं है, मैं जरूर शामिल कर लेता. पता नहीं क्या आपने लिखा. और फिर लियाकत खान साहब का दूसरा मैसेज है जी. उम्मीद है कि आपके मिजाज खैरी से होंगे. सही साहब, सईद आसिम साहब और रऊफ उमर साहब और अहमद जमान साहब को सलाम. वासी भाई क्या बात है आज अकील अहमद तो याद नहीं आ रहे. अच्छा ये अकील अहमद का इन्होंने एक नज्म है मेरी, शायद उसका हवाला दे रहे हैं. तो भाई हम सब अकील अहमद ही हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं. आपका बहुत शुक्रिया. और काशिफ पेंटर साहब जी इन्होंने ये मैसेज भेजा हमें निशाद कॉलोनी से. भाई आप कैसे हैं? और मुझे इन्होंने कहा जी कि
गाने की इन्होंने फरमाइश की है। चलें काशिफ पेंटर भाई, आप प्रोग्राम में रेगुलर अपने मैसेजेस हमें भेजते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और एक हमने सालगिरह भी विश कर दी, कुछ देर के बाद करेंगे। और इसके साथ आपके दीगर जो पैगामात हैं, क्योंकि आज हमारे मेहमान हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके पैगामात के साथ, क्योंकि ये अभी बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्हें इतनी दूर से बुला के मैंने आपके मैसेजेस का सिलसिला भी जारी रहता है। सही साहब ये बताइएगा जी जी, ये शेर कहने के लिए शेर पढ़ना कितना जरूरी है? जहां तक शेर कहने की बात है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि शायरी खुदादाद सलाहियत है। शायर पैदा होते हैं, ढाले नहीं जाते, लेकिन उसके लिए जाहिर है आपका जो मुतालिया है वो असाद जरूरी है। और जितना आपका मुतालिया ज्यादा होगा, जितना आपका जिंदगी का मुशाहिदा ज्यादा होगा, उतना अच्छे ख्याल को आप जो है पेश कर सकेंगे शेर की सूरत में। इसका सर यही जवाब हो सकता है कि जिस तरह बातें करने के लिए, आपका ख्याल ये है कि जो सईद साहब की बात है वो इनकम्प्लीट है, उसको आप मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी, मैं अपने तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जिस तरह बातें करने के लिए गांव में हमें कहते हैं जी कि आप लोगों में बैठें, ठीक है, ताकि आपको बातें करने का पता चले कि बात कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों में बैठे। जी, जाहिर है। तो अच्छी शेर लिखने के लिए भी अच्छे शोरा का कलाम पढ़ना जरूरी होता है। अच्छा रूफ, आप किस को पढ़ते हो? मैं जो है वो ज्यादातर शुरू से तो मीर को ही ज्यादा पढ़ता आया हूँ। गालिब जाहिर है उसको ना पढ़े बगैर तो चारा नहीं, वो अपने मिजाज का एक शायर है। ठीक है। बाकी जो है वो वक्तन फवक्तन लोग जो हैं वो ज़ेरे मुताला रहते हैं। ये तो हमारे जो क्लासिकल अदब के वो हैं, जाहिर है सईद भी इससे इनकार नहीं कर सकते, सईद आसिम साहब। तो सईद आसिम साहब, जो नई नस्ल जिस तरह से एक सिलसिला चला हुआ है, जी जी, आपका भी उनसे उससे ताल्लुक है? बिल्कुल। तो इसमें भी बहुत सारी आवाजें सामने आई, आ भी रही हैं, तो इसमें कुछ बताइएगा। सईद वासक साहब मेरे जो यानी मुआसिरीन आप कह लें भाई हैं, उनमें बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। हसन अब्बासी हैं, तैमूर हसन हैं, अरशद शाहीन हैं, अरशद हुसैन हैं, शाहिद बुखारी हैं, मदाफात में बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो नौजवान बहुत अच्छा यानी लिख रहे हैं ये सब लोग जिनके नाम मैंने लिए हैं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा लिख रहे हैं। रऊफ कह रहा था कि यार आपने मेरा नाम नहीं लिया, ना रऊफ साहब का नाम लिया है। रऊफ मैं तो दिल में अंदर मैंने कहा था कि सरे फहरिस्त मेरा नाम है। अगर आप मेरे सामने, जी मैं लेने वाला था आपका नाम अभी। बहुत शुक्रिया। सईद वासिक साहब, अगर आप मेरे सामने न बैठे होते तो सरे फहरिस्त आपका नाम होता। अच्छा, नहीं आप किसी के सामने तारीफ करना पसंद नहीं करते? नहीं, तारीफ करना पसंद करता हूँ, गीबत करना चलें ठीक है। क्योंकि शायरों के यहाँ वैसे ये तो हमेशा से रहा है। वैसे सईद, अगर आप इसको देखें, आप जिन हलकों में आप लोग भी बैठते हैं, ठीक है, जिसको एक कोने से दूसरे कोने में शायद वो शायर भी किस कैलिबर के हैं, कहाँ नहीं है, ठीक है ना, तो वो यानी दूसरों को वो कह लीजिए कि कमतर साबित करने में अपनी सारी सलाहियतें। रऊफ आप बताइएगा जरा। अच्छा एक मिनट सईद भाई, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मुआसराना चश्मक तो असातिज़ा के जमाने से आ रही है। अच्छा। लेकिन बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प बात यह है कि मेरा सबसे बड़ा मुआसिर जो मेरा दोस्त भी है और जिसे मेरी मुआसराना चश्मक भी है, वो मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, यानी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो आपका वैसे इनके साथ मुकाबला तो कोई नहीं है, इनकी शायरी तो ज्यादा अच्छी है। उम्र में बड़े हैं जाहिर है। हाँ। तो जाहिर है इनका मुशाहिदा मुझसे ज्यादा है। हाँ जी, उम्र में ये तो अहमद आप बताएं जी, उम्र में कौन बड़े हैं, क्योंकि आप शायर नहीं है, आप तो सिंगर हैं। नहीं, ये दोनों एक जितने ही है। एक जितने ही है? हाँ जी। अच्छा, चलें, आपने वैसे वरना सईद आसिम कम से कम 10 साल बड़े जरूर हैं। ठीक है, मार के सही साहब। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने फरमाया कि मतलब ये तो एक हसद और इस किस्म की चीजें ये हर फील्ड में होती हैं। बिल्कुल, ठीक है। इसको हम जरा पीछे चले जाएं तो इसातिज़ा और जो गिरोहबंदियों की सारी बातें और इस तरह से सारा, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम इन बातों को जारी रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ अता फरमाइए, कुछ सुनाइए, और फिर हो सकता है कि मेरी जो गलतफहमी मुझे हो गई है रऊफ साहब के बारे में वो दूर हो जाए। अब आपने बिल्कुल चुन के कलाम सुनाना है, और फिर उसके बाद मैं सुनने वालों को बता दूं कि सईद आसिम साहब की एक जो बड़ी बहुत अच्छी इनकी एक शायरी के साथ इनका जो बहुत उम्दा